So let me explain you why we have required the tuition, what are the best way to study, what should be the purpose of our study, how can we be better with the time, and overall how a real education must look like. So before we start this conversation, I would first like to ask from everyone, you are totally free to answer in Hindi as well, okay? So you have to answer according to you. What do you think? Education क्यों जरूरी है? Why the education is important? Just in one line. If I will ask Anushka, what you would like to speak? Why education is important? खड़ा हो जाओ, बताओ. Why? हाँ हिंदी में बताओ। हाँ हिंदी में बताओ. क्योंकि जब हम पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और Okay, according to you, why the education is important? Why the education is important? जब हम पढ़ाई करेंगे हमें कोई हम कहीं गए, हर जगह पढ़ाई का ही मकसद होता है। जहाँ हर एक जगह पे गए वहाँ पे भी कोई पढ़ाई का ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमसे कोई कुछ क्वेश्चन कर दिया तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ आगे के चलकर मेरी लाइफ Would you like to speak why education is important according to you? एजुकेशन हमने पढ़ने ध्यान में पढ़ाई सबसे जरूरी है। चलो Why education is important and what education make us? Education is most important because education teaches many things like your behavior, discipline, and study also. So the education is overall something that shape your life, that shape your behavior, that shape your overall personality, and your personality will shape your village, state, India, and overall the world. That's why our education is playing very significant role in our life. Even though all the parents are understanding the value of education, they even are not doing a big thing, but still they are like at least wants their child to study well. But I think still the parents are not aware about what actually the education is. Education is not only the marks. They believe that if my child will obtain the high marks, then automatically he will become a good enough in education and in discipline and so on. ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छा नंबर लाते हैं और बच्चे पढ़ के कुछ बन जाते हैं, कुछ बनना इन द सेंस वो सरकारी नौकरी, कंपटीशन जिसमें हार्ड वर्क की भी ज़रूरत होती है, स्मार्ट वर्क की एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, वो सारे ले करके बन जाते हैं। और जब बन जाते हैं तो अपने माता पिता को ही अपने घर से निकाल देते हैं। और जब माता पिता से पूछा जाए कि क्या ये एजुकेशन आप अपने बच्चों से चाहते थे, तो वो कहेंगे नहीं। और जब उनसे पूछा जाए कि जब आप ये एजुकेशन नहीं चाहते थे तो आखिर आप अपने बच्चों को मार्क्स के लिए क्यों ही केवल पीटते थे, आप कभी ये क्यों नहीं पूछते थे कि आखिर आपका ये बिहेवियर क्यों है, आप कभी ये चेक क्यों नहीं करते थे कि क्या वो केवल अपने सिलेबस को रट रहे हैं या फिर उसमें श्रवण कुमार की दी गई कहानियों से कुछ सीख कर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इट वॉज ओनली फॉर द पेरेंट्स एंड द very important thing for a student as well, that you have to think what is going to shape you and what is going to break you. Even only those education which is going to give you the marks which will provide you the pleasure. मार्क्स से हमें प्लेजर क्यों आता है? बिकॉज वी कंपेयर आवर सेल्फ विथ अदर, है ना, कि मार्क्स इज समथिंग दैट इज मेजरेबल। मार्क्स ऐसा चीज़ है जिसको मेजर कर सकते हैं और उससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि आपका 25 आया था, मेरा 30 आया था, लाइक तो आपसे 5% 5 अंक ज़्यादा आया है। ये कौन सी खुशी है?
मतलब ये एक भीड़ में भागती हुई कोई अगर पत्थर इकट्ठा कर रहा है तो आप अगर कोई 20 पत्थर इकट्ठा कर लिए तो आप 25 इकट्ठा करके बोल रहे हो कि आप मेरे पास आपसे ज़्यादा पत्थर है, बट यू डोंट नो दैट वेदर दिस पत्थर दैट इज द स्टोन इज यूजफुल और नॉट इन योर ओवरऑल लाइफ. सो what is the education? According to me, the education is the overall something like it might be the knowledge, it might be the training, it might be the thinking which shape our life, which shape our decision, which shape our behavior, that how we are going to behave in certain situation. लेकिन आज के किताबों में ये जो एजुकेशन है उसको केवल एक सिलेबस के रूप में बांट दिया गया है, जहाँ पे हिंदी की कुछ कहानियों को, उसके क्वेश्चन आंसर को ही बनाने में हम अपना सारा समय लगा देते हैं. हालांकि NEP, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ कहीं भी किसी भी स्कूल में ये बात बताया जा रहा है. सरकार भले ही NEP 2020 लागू कर रही है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, यहाँ तक कि बहुत से टीचर भी गवर्नमेंट स्कूल के इस बात को नहीं जानते हैं कि आखिर बच्चे उन सारी चीज़ों को अभी से एक्सेस कैसे कर सकते हैं. तो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फॉर द क्लास 1 to 12 एक ऐप है जिसका नाम है दिशा. हाँ, दीक्षा ऑनलाइन. दैट ऐप हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग उसका नाम जानते हो और ये भी यहाँ तक जानते हो कि उस पर कुछ पढ़ाई वगैरह होता है, बट एक्चुअली यू डू नॉट नो दैट व्हाट एक्चुअली द दिशा इज डूइंग राइट नाउ. You do not know, even the Diksha is not going to give you the direct marks in examination, but indirectly the things that the Diksha will give you, it will be the more than the marks that you will obtain throughout your life. यानी कि तुम पूरे जीवन भर में जो मार्क्स नहीं उठा पाओगे, दिशा जो है वो तुम्हें एक दिशा दिखाने का काम कर रहा है. वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो कि हम कैरियर कैसा चुने, चाहे क्लास 8 में है तो वहीं से अपना कैरियर कैसे चुने. वहाँ से तुम बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करना सीख सकते हो, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होता है. और बाद में हम पढ़ के जब जाते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं होता है जिसके वजह से हमें नौकरी मिलनी चाहिए. ओके, तो इसीलिए हमें पहले से ही उन सारे सब्जेक्ट को, अगर सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, अगर स्कूल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, so in the online time where it become the responsibility of everyone, include you, your parents as well. If your parents is not doing due to any reason, that you have to search that what are the career supporting by right now. Is it only the doctor? Is it only the engineer? It is only the IAS IPS or something beyond of them. और IAS IPS भी बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होना चाहिए. बताओ कि ये कहाँ सिखाया जाता है? क्या आज तक किसी को पब्लिक स्पीकिंग सिखाया गया है कि लोगों के सामने कैसे बोला जाता है? मूव द कैमरा अराउंड थ्रू आउट देयर एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि आज तक किसी को पब्लिक स्पीकिंग के लिए उतना प्रेशर किया गया है जितना प्रेशर उनको होमवर्क बनाने के लिए या परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए किया गया है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर पे हो? किसी के साथ किया गया है? वो मतलब जैसे इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच के लिए होता है ना. हाँ, इंडिपेंडेंस डे ओनली द सिंगल. क्या बोला जाता था? आइडियल पब्लिक स्कूल में बोला जाता था कि बोलना है, स्पीच लेना ही है सबको. तो सबको स्पीच लेना है? क्या ऐसा बात सही है? सबको उनमें स्पीच लेने के लिए कहा जाता था? आइडिया से तो अभी पढ़ी है. जो बोल सके, जो बोल सके, सबको नहीं कहा जाता था. हम लोग जो मतलब नहीं भी लेता था उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला जाता था कि आप भी कोशिश कीजिए. ओके, ठीक है. सो द इंडिपेंडेंस और द रिपब्लिक डे कम्स ओनली ट्वाइस इन ए ईयर, है ना? सो थोड़ा सा एफर्ट लेते थे एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि वो इतना एफर्ट लेते थे. लेकिन ये एफर्ट सफिशिएंट नहीं है जितना एफर्ट वो संस्कृत, मैथ, साइंस में मार्क्स लाने के लिए करते हैं. काश उसका थोड़ा सा भी एफर्ट अगर वो डेली बेसिस पे बच्चों को बोलने के लिए वो करते तो हमें नहीं लगता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को उनको इतना ज़्यादा किसी भी टीचर को या किसी भी व्यक्ति को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती कि वो बच्चा उनके सामने बोल पाए. वो बच्चा एजुकेशन उसके पास है, मान लीजिए हमारे पास धन है, हमें धन दिया गया है, बट वी डोंट नो दैट व्हाट एक्चुअली दिस मनी इज.
and where we have to use it and how we have to use it, तो क्या ही फायदा उठान का। उसी प्रकार ये एजुकेशन है, यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिखाया जाएगा, अगर हम x का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं हम अपने स्कूल में, सो व्हाई द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू पुट द वैल्यू इन आवर लाइफ, हाउ द अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी एंड ट्रिगोनोमेट्री कैन चेंज द कैरियर एंड द ग्रोथ इन आवर लाइफ। कुछ लोग आके बीच में बोल देंगे अरे यार ये पढ़ोगे ना तो इससे माइंड सेट डेवलप होगा, ये बहुत काम आएगा, और कोई ना कोई चीज सीखता रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ काम। भाई सीखने के लिए पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, अगर इस तरह से हम रैंडम चीजों को सीखने के लिए आ गए तो हमारा दिमाग जो है वो भर जाएगा। अल्टीमेटली जो चीज हम सीखेंगे ना वो दुनिया के लिए यूजफुल नहीं होगा। सीखने के लिए पूरा अथाह समंदर है, पर हमारा जो कैपेसिटी है वो एक बाल्टी और एक मग इतना है। इसलिए हमें सिलेक्ट करना है चीज़ों को कि हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। क्योंकि यदि हम गलत चीज़ों को, यानी कि वो गलत चीज़ मतलब क्या, वो चीज़ें जो हमारी गोल से ओरिएंटेड नहीं है, हो सकता है हम किताब में काफ़ी कवि का नाम याद कर लिए, साइंटिस्ट का नाम याद कर लिए, रट लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ ये सब याद कर लिए हैं, बट दिस ऑल आर नॉट गोइंग टू give you anything. It will just give you a happiness for few moments when you will compare your marks from your friend, है ना, कि मेरे फ्रेंड से मेरे ज़्यादा मार्क्स है। when you will declare the first division or the first rank in your school, तो उतना दिल के लिए तुम्हें खुशी होगा, but whenever you will come out from your school to survive in the real life, you will find out कि उस मार्क्स की सच में कोई वैल्यू नहीं है। कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स की वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें मार्क्स के ऊपर इस प्रकार से फोकस करना है ताकि हमारा रियल ग्रोथ भी ना रुके और केवल मार्क्स हमारा पर्पस ना हो, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि मार्क्स हमारी लाइफ को डिफाइन करने नहीं जा रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके वजह से मार्क्स आ रहा है, ये नहीं कि हम मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी करके हम मार्क्स के लिए 1 महीना में तैयारी करके अच्छा मार्क्स अगर चाहे तो ऑब्टेन कर सकते हैं। बट ओवरऑल आवर फोकस मस्ट बी समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग परमानेंटली, नॉट टेम्पोररी प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे भटक जाते हैं इन एनी पाथ, चाहे गलती राहों पे चले जाते हैं, तो दे डू एनीथिंग दैट गिव देम द प्लेजर फॉर शॉर्ट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल के गेम में भटक जाते हैं, मोबाइल देखना, तो उनको थोड़ा सा देर मज़ा आता है, इसलिए वो पढ़ाई जैसे कीमती चीज़ को भी वो अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार पेरेंट्स हमारे और टीचर ये अप्रिशिएट करने लगता है तो मार्क्स का भी बच्चों को एक कभी कभी आदत लग जाता है और वो एडिक्शन जो है उनको वो चीज़ें पढ़ने नहीं देता है जो सच में उनको पढ़ना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे जो कोई भी जानता हो, हाउ मेनी पीपल नो, इवन ऑफलाइन और ऑनलाइन, आई विल ऑलवेज रिकमेंड देम दैट दे मस्ट एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट दिस स्किल दैट व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड व्हाट दे डू नॉट हैव टू। यहाँ पे तुम्हें ये लोग तो बता देंगे कि क्या स्टडी करना है, ये सिलेबस, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पर तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। और जब तुम किसी भी IAS, UPSC या कोई भी एग्जाम में जब जाओगे तो ये काफ़ी लोग बताते हैं जो इसके प्रिपरेशन कराते हैं कि फॉर क्वालिफाइंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी, इंस्टेड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट व्हाट यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज वंस यू विल स्टार्ट स्टडी एवरीथिंग यू विल नॉट एबल टू लर्न, you will able to learn nothing। यानी कि जब तुमने सारे चीज़ों को सीखने के लिए शुरू कर दिया तो मुझे लगता है अल्टीमेटली तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये जो मोटिवेशन है ना कि हमारा दिमाग अनलिमिटेड कैपेबिलिटी रखता है, ये धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड कैपेबिलिटी रखता है पर उसके लिए अनलिमिटेड टाइम भी चाहिए होता है। और किसी भी जॉब को या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है। इसलिए जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि इट इज़ ओनली अबाउट द लाइफ, तो हाँ ये लाइफ के बारे में ही है, बट इट डजंट मीन दैट इट इज़ नॉट अबाउट एनी those who are preparing for any kind of the competitive examination. It is for everyone, beyond of their marks, beyond of their profession. Even they are students, this is valuable directly to them. Their parents, it will help them to make the good decision for their child. If they are teacher, then it will make the best of everyone, best before ever to their students.
सो इसलिए ये सबके लिए ज़रूरी है इन बातों को समझना। चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है एक छोटे से लेवल पे। ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसको हमें विद द टाइम हमें समझना होगा और किसी अच्छे गाइडेंस से जो इस लाइफ को जी चुका है। ये वो नहीं कि जो नौकरी का तैयारी करते रहा है, नौकरी मिल गया है, 25,000 का नौकरी कर रहा है, भले वो खुश है, या 50,000 का नौकरी कर रहा है भले वो खुश है या नहीं है, पर गांव में जो रिपोर्टेशन उसको मिल रहा है उसके बेस पे वो लोगों को कह रहा है नौकरी का तैयारी करो। अब भले अकेले में जाकर वो बहुत परेशान है क्योंकि उसने कभी केवल किताबों को देखा, पैसों को देखा, कभी अपने आप के अंदर झांक कर नहीं देखा कि क्या ये सच में मुझे खुशी क्रिएट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। अगर इट इज़ रियली, झूठ नहीं बोलना है लोगों के सामने, इट इज़ रियली गिविंग यू द हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट द जॉब यू आर डूइंग, देन रियली दिस जॉब इज गुड। चाहे दुनिया कितना भी खराब कह ले, अगर वो तुम्हें अच्छा खुशी नहीं दे रहा है तो चाहे दुनिया कितना भी अच्छा कर ले, वो जॉब वास्तव में अच्छा नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा से बड़ा पद क्यों ना हो। क्योंकि इंसान को अकेले आया है अकेले जाना है, और अकेले में ही इंसान जो है अपने आप से आंखें में आंखें मिला के असलियत बात करता है। वरना दुनिया में जीने के लिए हमें मुखौटा लगाना पड़ता है, और कुछ लोगों के सामने कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, कुछ लोगों के सामने कुछ और बोलना पड़ता है, कभी और एंड सो ऑन। That's why कभी कभी हमें अपना मुखौटा उतार करके भी जीना चाहिए, नहीं तो ये मुखौटा में जीते जीते हमारा दम घुटने लगता है और हमें कभी बाद में कभी इंसान को ये डिप्रेशन जैसी परेशानियां होने लगती है, क्योंकि इसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो कभी हमें असली इमोशन को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर किसी के सामने नहीं कर सकते हो, किसी पे विश्वास नहीं है, सो इट इज़ ओके, यू कैन गेट द सेफ स्पेस, इवन यू कैन सर्च समवन लाइक द काउंसलर हु विल नॉट जज यू, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट हैविंग एनी वरी। सो इट वॉज समथिंग। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 1 में हो, लेकिन जो बच्चे समझने योग्य हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्लास 3-4 से ऊपर एबव एनी क्लास दे आर स्टडिंग, हाउ दे शुड प्रोसीड। अब मैं सबसे एक सवाल पूछूंगा और सबको जवाब देना है। सो यू विल ऑल्सो हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर विल ओनली यू हैव टू प्रोवाइड इन one line. So I will start with the Khushi. You have to think answer in your own mind what answer might be best. While there is no right and wrong answer, just you have to practice from your side. अपने तरफ से तुम्हें कोशिश करनी है। So मेरा ये सवाल ये है कि हमें पेरेंट्स ट्यूशन भेजते हैं, वास्तव में देखी जाए ट्यूशन स्कूल भेजते हैं, वास्तव में स्कूल और ट्यूशन का ज़रूरत क्यों है? I will start with the Khushi. Why we actually have required the school and tuition? Why we have required why our parents sent there? School and coaching is very required for a student. School and coaching give us a best guideline for your study and get your goal. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हर ये कहना चाहती हैं कि स्कूल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मार्गदर्शन देता है, यानी कि कुल मिलाकर के हमें रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, इट्स नाइस ओवरऑल। तो क्या वो रास्ता दिखाने का ही काम है कि रास्ता पर चलने का भी जिम्मेवारी उसी का है? नहीं, स्टूडेंट का है। ओके, सो द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय मिस अनुष्का, दैट व्हाई आवर पेरेंट्स सेंड टू स्कूल। हमें स्कूल में हमारे पेरेंट्स क्यों बोलते देते हैं? हिंदी में बताओ। स्कूल और ट्यूशन हमारे पेरेंट्स स्कूल बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। समझ नहीं आ रहा है क्या हो। स्कूल और ट्यूशन हमारे पेरेंट्स हमें क्यों भेजते हैं? हाँ, स्कूल और ट्यूशन हमारे पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चले और पढ़ाई अच्छे से कर पाए, और मतलब जो मतलब बता रही हूँ। ओके, कोशिश किया तुमने, बहुत अच्छा। स्कूल हमारे पेरेंट्स क्यों भेजते हैं? स्कूल हमारे पेरेंट्स क्योंकि स्कूल जाए तो कुछ नया सीखे। Okay, Sisam, would you like to speak why our parents send us in school? बोलो। हमारे माता पिता हमें स्कूल इसलिए भेजते हैं या फिर कोचिंग इसलिए भेजते हैं कि हमारे अंदर कुछ डिसिप्लिन आ जाए, और वो ताकि हमारे टीचर हमें अच्छे से गाइडलाइन दे सकें। क्योंकि हमारे पेरेंट्स
पुराने ज़माने के हैं तो शायद उन्होंने अच्छे से एजुकेशन को प्राप्त नहीं किया है, जिससे उनको लगता है कि वह मतलब स्कूल जाएंगे बच्चे तो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे और बातों को अच्छे से समझेंगे और थोड़ा पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आगे चल के उनके लाइफ प्रोसेस में काम आएगा ये। गुड अटेम्प्ट, पकड़ो। हम इससे पहले कि इस विषय पर आए हैं, जिस सवाल को पूछा उसका जवाब मैं अपने शब्दों में दूं। पहले मैं तुम लोगों के एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, मैं पूरे दुनिया के सामने जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तुम लोगों के सामने भी। तुम लोग बचपन से स्कूल जा रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन जब कैमरे के सामने बोलने की बात आई तो लगभग सबने अनकंफर्टेबल महसूस किया। क्या वो दोस्त कैमरे की है या फिर वो दोस्त हमारी उस इन्वायरमेंट की जो हमें कभी मौका ही नहीं दिया पब्लिक में बोलने की? क्योंकि यदि आप पब्लिक में बोले, क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो, कम से कम इसका तो अच्छा रीजन आपको पता होना चाहिए ना भाई कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो हालांकि कई लोग, सभी लोगों को लगभग मान लेते पता भी है, पर क्या बोले, कैसे बोले, है ना? तो यू कैन बी टेकिंग द एग्जांपल इन अनुष्का एज वेल। सो व्हाइल इवन यू आर, कुछ लोग कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अरे भाई इंट्रोवर्ट हो तो दुनिया के सामने तुम्हें अगर कुछ बोलना हो, कुछ समझाना हो तो समझाना पड़ेगा ना। जैसे तुम्हारे पास धन है तो उसको खर्च करना पड़ेगा। अगर इंट्रोवर्ट हो तो कोई बोल ही नहीं पाओगे, कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे, तो कैसे? दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता है आपको बोलना नहीं। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जिनको दुनियादारी से कम मतलब रहता है, पर जब भी जरूरत पड़ता है कहीं किसी अच्छा विषय पर बोलने के लिए तो वो बोलने से नहीं हटते, अपना एक दो पॉइंट जरूर रख देते हैं हिम्मत के साथ। कम ही बोलेंगे, एक दो लाइन बोलेंगे, उसके बाद से हट जाएंगे, पर बोलेंगे, कांपेंगे नहीं, क्या बोलूं, ऐसा नहीं होगा। उनके पास जवाब होगा, बस ये होगा कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैं इस प्रकार की समाज बिल्ड करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और इसीलिए मेरा जो भी कंटेंट और जो भी गाइडेंस है वो इसी के रिगार्डिंग में है। एंड यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अबाउट द गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स। नाउ लेट्स कम बैक अगेन ऑन द टॉपिक दैट द टॉपिक वाज अबाउट कि हम स्कूल क्यों जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स हमें स्कूल इनिशियली जो है हमें शेप करने के लिए भेजते हैं। द शेप मीन्स कि हमारी एक अच्छी डिसिप्लिन हो। We learn to respect our elders. We learn to understand when we have to speak and when we do not have to. We learn to understand the value of the time. We learn to understand the equality and so on. ये चीज एक बेसिक चीज है जो कि होना ही चाहिए, बच्चों को भेजते हैं। पर उसके साथ साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पेरेंट्स का गोल बदल जाता है, और बदलना भी चाहिए क्योंकि बच्चे वही थोड़ी सीखते रह जाएंगे। हालांकि लर्निंग टू लाइफ लॉन्ग चलती है। उसके बाद से जो पेरेंट्स है वो बच्चों को एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए भेजने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी टीचर इज टीचिंग द साइंस, तो वो स्कूल में भेज रहे हैं ताकि ये जो साइंस किताबों में लिखा हुआ है ये टीचर उसको अपने से आसान भाषा में बता करके बच्चों को समझा दे और इसको कैसे पढ़ना है रास्ता दिखा दे। कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों की ये कुछ बहुत बड़ी धारणाएं होती हैं कि मैं 4 कोचिंग करूंगा, मैं बहुत बढ़िया जगह अपने बच्चे को कोचिंग भेजूंगा जो 2 घंटा आने में समय लेगा, 2 घंटा जाने में समय लेगा, 2 घंटा जब थक जाएगा तो आराम करने में समय लेगा, ठीक है, और 2 घंटा वहां पे पढ़ने में समय लेगा, 8 घंटा बच्चा गया। अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत ये है कि कोचिंग की जरूरत आखिर क्यों है। कोचिंग केवल रास्ता दिखाता है। अगर आप एक साइंस को पढ़ने के लिए 3 जगह जाते हो तो हो सकता है एक टीचर बता रहे हैं कि देखो आप अगर आपको वहां पे जाना है, दिल्ली जाना है सिवान से, तो आप बनारस होते हुए भी जा सकते हो। एक टीचर बताते हैं सुनो दिल्ली जाना है तो आप मैरवा होते हुए भटनी वाले रास्ते से भी जा सकते हो, गोरखपुर होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि केवल हम टीचरों से अगर पूछने में ही अपना समय बर्बाद कर दिए और चलना प्रारंभ ही नहीं किए, जो कि बिल्कुल होगा यदि तुम लोग या कोई भी बच्चा सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देगा, चाहे कितना भी एआई बढ़ जाए। याद रखना, जितना ही ज्यादा एआई बढ़ रहा है हमारे सामने रास्ते तो खुलते जा रहे हैं और सेल्फ स्टडी का टाइम घटता जा रहा है। और सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी चीज नहीं घुस पाएगा, बल्कि वो एक रैंडम इंफॉर्मेशन जो इधर उधर लहरता है वो लहरते हुए रह जाएगा जब तक तुम एक चुंबक बन के उस इंफॉर्मेशन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना नहीं सीखोगे। समझ रहे हो? यानी कि तुम्हारे पास टाइम चाहिए, जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ने की भी
और अपने माइंड को प्रोसेसिंग के लिए समय देने के लिए भी, ताकि वो चीज़ों को याद करे। अदरवाइज तुम यहाँ से किताब खरीदोगे, आर.के. सिन्हा का मैथ खरीदो, एनसीईआरटी का खरीदो, 5-7 मैथ का किताब खरीद लिए, पर पर्पस समझे ही नहीं कि उसके सब बुक का एक ही पर्पस है, इन कंसेप्ट को तुम्हें समझा देना, दैट्स इट। और तुमने स्टार्ट कर दिया सारे के सारे एक्सरसाइज को बनाने के लिए, बिकॉज यू वांट टू बी जस्ट लाइक योर टीचर, दैट कैन बी नेवर पॉसिबल जस्ट इन वंस, बिकॉज योर टीचर इज टीचिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तब वो जाके उस लेवल पे हैं कि वो मैथ के सवाल को आसानी से बना ले रहे हैं। एंड यू कांट रीच ऑन दैट लेवल। अगर तुम ऐसे लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर जाओगे तो काफी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए 1-2 बार पढ़ो, जितना बन रहा है इट्स ओके। अगर थोड़ा कम ही बन रहा है तो यू डू नॉट हैव टू डू द वेरी लाइक हार्ड, लाइक बहुत ही ज्यादा अपना सर नहीं फोड़ना है, बल्कि और सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है कि वो कम से कम ना छूटे इसके चक्कर में। पहली चीज, ये जो इन्फॉर्मेशन है, बुक्स है, नॉलेज है, चैट जीपीटी भी पढ़ लिए, सोचते चलो भाई अभी इसी सवाल को हम एक जेमिनी से भी पूछ लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसी सवाल को हम यूट्यूब से भी पूछ लेते हैं। इसी सवाल को दोस्त से फोन लगा के, एक ही सवाल को तुमने पूछने में तो इतना समय लगा दिया, और कभी अपने माइंड में उस सवाल को प्रोसेस नहीं होने दिया। उल्टा में गलती क्या हो गया कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा और भूलने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। जब तक तुम नोट्स बनाओ के, शॉर्ट सी नोट्स क्यों ना हो, अब बैठकर खुद से नहीं पढ़ोगे। इसीलिए चाहे कोई भी बच्चा 4-5 एक ऑनलाइन कोचिंग कर लिए, एक ऑफलाइन कर लिए, एक स्कूल चले गए, स्कूल ट्यूशन ये अरे हमारा बच्चा सुबह से शाम इतना मेहनत करता है, उसके शरीर का पसीना, उसको नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पसीना से वो नहा लेता है, बस साबुन लगाना पड़ता है उसको, और साबुन को साफ करने के लिए पानी गिरा देता है बस एक मिनट। सो दैट इज समथिंग एवरी पेरेंट्स एंड एवरी चाइल्ड रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, दैट द हार्ड वर्क इज नॉट मैटर अ लॉट ओनली, बट हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज मैटर। हार्ड वर्क मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं इस दरवाजा को धक्का देने में, पसीना बहा दिया, बोला बहुत ज्यादा वर्क मैंने किया है ना। तो कहो हाँ यार ये तो मेहनती है, पसीना बह रहा है, पर यार देखो तो ये किस चीज में पसीना बहा रहा है, ये कुछ अच्छा करने में बहा रहा है या कुछ बुरा काम करने में बहा रहा है। अच्छा बुरा क्या होता है, क्या अच्छा बुरा बच्चा समझ पाएगा, अच्छा बुरा पेरेंट्स समझ पाएंगे, तो काफी हद तक पेरेंट्स समझ सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये मानना चाहिए कि हाँ पेरेंट्स चूंकि अगर एजुकेशन फील्ड में नहीं है, अगर है भी तो समय इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, तो पेरेंट्स को एक काउंसलर, एक गाइडेंस की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना महंगा टीचर को तो अफोर्ड कर पा रहे हैं जो एक ही सब्जेक्ट को घोल घोल के पिला रहे हैं, बट एक काउंसलर को एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो उनको ये बताए कि किसको घोर के पीना है, किस चीज को पचाना है और किस चीज को हमें वॉमिटिंग कर देना है। इसीलिए वी हैव रिक्वायर्ड ए गुड गाइडेंस, वी हैव रिक्वायर्ड समवन हु कैन टीच अस दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी एंड व्हाट वी डू नॉट हैव टू। सो सेल्फ स्टडी, पूरे एआई चाहे कितना भी आ गया चला गया और कितना भी कुछ भी आ जाए, पर जो सेल्फ स्टडी है तुम्हारी सीखने के लिए, तुम्हारे रियल मेमोरी को ग्रो करने के लिए, तुम्हारे रियल नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, उसके साथ उसको अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा। चाहे तुम 10 जगह ट्यूशन में बैठ करके इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश के रूल समझ लो, कहीं जाओगे वही रूल समझाया जाएगा, बट until and unless you will not start implementing that rule in your day-to-day life anyhow. Remember, there is no any book, there is no any teacher, there is no any person who can make you learn the English automatically. Because English is not a magic, English is a skills developed over practice with the time. मैं कहना यही चाहता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया में अथाह नॉलेज का भंडार पड़ा हुआ है। हमें समझना है कि कौन सा नॉलेज हमारे काम के लिए है और कौन सा नॉलेज हमारे काम के लिए नहीं है। कौन सा नॉलेज लेने के बाद से जब हम यहाँ से जब स्कूल से निकाल दिए जाएंगे या निकल जाएंगे, भाई याद रखना स्कूल से तो सबको निकलना है ना, कॉलेज से सबको निकलना है, निकल के हमें मार्क्स का डिग्री लेके केवल खड़ा होना है, या फिर वी हैव समथिंग दैट इज वैल्यूएबल हो। अब तुम लोग कहोगे अंकल हम पता कैसे लगाएं कि हमारे लिए कौन सा चीज वैल्यूएबल है और कौन सा नहीं है? पता लगा सकते हो, देखो अभी पढ़े लिखे लोगों को जो मार्क्स लेकर बैठे हैं, और देखो उस समय कि तुम्हारे पापा को जब जरूरत पड़ती है किन लोगों को बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
वो अगर वो टीवी बनाना होता है तो किसको बुलाते हैं, एसी बनाना होता है किसको बुलाते हैं, अगर अपने यहाँ किसी डाटा एंट्री वाले को रखना होता है तो किसे बुलाते हैं, जॉब में किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है ना, और किस ज़रूरत हो रही है। नाउ यू हैव द AI टूल, AI को यहाँ से यूटिलाइज करो ना, AI से पूछो भाई कि ये हम पढ़ रहे हैं क्या। भाई मैं बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री मैंने पढ़ी है, 11th-12th में तो इतना घोर घोर के पढ़ा है, लेकिन हाँ 9th-10th में भी पढ़ी है। पर रियलिटी में मैं बताऊँ तो 9th-10th में ट्रिगोनोमेट्री जितना जोश के साथ मैंने पढ़ा था, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इन माई लाइफ इन सच अ वे। It does not mean कि we do not have to study the trigonometry. It's only mean that हमें समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री हमें उतना ही थोड़ा सा पढ़ना है मार्क्स के लिए। अदरवाइज वी डू नॉट हैव टू कंप्रोमाइज विद द रियल नॉलेज दैट इज द अकाउंटिंग। जैसे अकाउंट अपना मनी कहाँ पे खर्च करें, खर्च कहाँ से करें, कमाए कैसे, हाँ अकाउंटेंसी, या रियल लाइफ कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को मैनेज करें। आजकल के बच्चे कम उम्र में ही दे ऑटोमेटिकली कम इन रिलेशनशिप दैट इज नॉट सेफ फॉर देम, बट देयर इज नो एनी स्कूल, देयर इज नो एनी टीचर, देयर इज नो एनी गाइडेंस हु इज गोइंग टू टीच दैट वेदर this is good or not, how they can live this relationship, how they can manage this conflict. So these are something that must be taught to the child from the childhood, and if the anyone is not taking the big initiative, this is your responsibility to make yourself better, otherwise you will be destroyed. हालांकि हाँ सरकार अपने तरफ से स्तर से कोशिश कर रही है, और उसके दिशा जो ऐप है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करो, वहाँ से लॉगिन करो, अपने क्लास वगैरह चूज करो और वहाँ से रियल लाइफ एजुकेशन को लेना शुरू करो। हाँ इंग्लिश में ज़्यादातर कोर्स है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हिंदी में भी इंग्लिश में भी हो, सो ये समझो कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंग्लिश को हमें अडॉप्ट करना ही होगा, चाहे जैसे भी करें। नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें तेरा घाटा, इंग्लिश का कुछ नहीं जाता। दैट मीन्स अब आपको इंग्लिश कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, आपको बहुत कुछ बताया गया है। सो इट वॉज फॉर टुडेज सेशन, आई होप दिस सेशन विल हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं सबसे पूछूंगा एक एक टेक अवे कि आपने इन सारे बातों से एक एक सीख बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है, और सब को जवाब देना है, और इसमें ना नहीं चलेगा, बिकॉज आई विल ऑब्टेन द स्टिक एंड आई विल ऑल्सो पनिश इन द वीडियो ऑल दोज हु विल नॉट स्पीक इवन वन लाइन अबाउट इट। सो हम स्टार्ट करते हैं अनुष्का से नहीं बल्कि खुशी से, कि आपने इन सारे विषयों पर जो हमने चर्चा किया उससे आपको क्या क्या टेक अवेज ले जाना चाहती हैं यहाँ से। हम यहाँ से सीखे कि एजुकेशन क्या है और पेरेंट्स हमें स्कूल क्यों भेजते हैं, और हमें सही दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए और फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हार्ड वर्क भी सही दिशा में करनी चाहिए। हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने सीखा कि कैमरा चालू है और तुम्हें बताना है कि इन सारे बातों को जो इतना देर तक मैंने बोला, क्या इसने तुम्हारे दिमाग का ढक्कन खोला, यानी कि तुमने इन सारी बातों से क्या क्या सीखा, कुछ टेक अवे को यहाँ पे बताओ। हमने यहाँ से ये सीखा कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन क्या है, क्यों जरूरी है बताओ। हाँ क्यों जरूरी है, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन जरूरी है, और तथा बस इतना ही। और हमें कोई कुछ ऐसे हम कहीं जाते तो कोई क्वेश्चंस पूछता है तो उसे उसका जवाब दे सके। अच्छा तो मान लो अगर तुम चल रही हो, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ कि देश का 5वां प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाब नहीं दे पाओगे, इसका मतलब एजुकेटेड नहीं हो। बोलो अभी कह रही हो ना कि कोई पूछे तो हम उसका जवाब देने के लिए पढ़ते हैं कि भाई हम जवाब दे दें। हाँ क्या? हाँ ओके खैर तुमने कोशिश बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने समझा है चीज़ों को, धीरे धीरे समय लगता है, एकाएक कोई भी समझ नहीं पाता। इन सारी बातों को देखोगे, इस वीडियो को भी अगर तुम एक बार देखोगे दो बार, तो इट विल समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द एनी लाइक एजुकेशनल बुक्स अर्लीस्ट। अब तुम बताओ कि तुमने इन सारी बातों से क्या सीखने को तुम्हें मिला, और ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे जाने वाला है, इसलिए कोई भी ऐसा हरकत मुंह पर हाथ रख के ना करो, जैसे भी बोलना है। अगर घबरा के भी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, पीपल यही समझेंगे कि तुम लोग लर्न कर रहे हो, इवन वी ऑल आर लर्निंग।
हमें इससे ये सीख मिली कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ट्यूशन वगैरह करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। अगर सेल्फ स्टडी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ट्यूशन से ज़्यादा। अगर ट्यूशन जाते हैं आते हैं उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो इससे हमें ये सीख मिली कि सेल्फ स्टडी भी साथ में ज़रूरी है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे जब तक मतलब पढ़ाई नहीं हो पाए। तो क्या मैंने ये कहा कि आपको ट्यूशन नहीं जाना चाहिए? नहीं, आपने ये नहीं बोला। मतलब ट्यूशन जाना चाहिए बट ट्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए अब है। और ये है हमें ये भी सीख मिला है कि बता रही हूँ 2 मिनट। ठीक है 2 मिनट में सोचो तुम्हें क्या सीख मिला है? हमें एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कोचिंग स्कूल जाना चाहिए मगर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नाइस टू हियर डियर एवरीवन। सो हमें उम्मीद है कि अच्छा आंखों में हाँ बोलिए हाईली माइक पकड़िए बोलिए। कैमरा में फोकस कीजिए। अरे अंकल की बोलिए। आज की क्लास से हमने यह सीखा कि हमारे लाइफ में हमेशा ये मार्क्स ज़रूरी नहीं होते हैं। हमें रियल लाइफ एजुकेशन को कलेक्ट करना चाहिए हर जगह से और ज़्यादातर टाइम अपने सेल्फ स्टडी में अपने सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोचिंग स्कूल जाते हैं तो वहाँ से हमें गाइडलाइन मिलती है, रास्ता देखने को मिलता है कि कहाँ से जाना है, बट जो करना है वो हमें घर पर अकेले में करना होता है। वेरी गुड, नाइस टू हियर। कैमरा पकड़िए, आपने बहुत अच्छा बोला है। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो लोगों को लगता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होता है, नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट यू विल लर्न। तो धीरे धीरे रोज रोज करके हम ऐसे इंटरेक्टिव सेशन करेंगे जितना दिन तक मैं हूँ, एंड देन वी विल ट्राई टू डेवलप द स्किल्स सो दैट वी कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके हाँ, सो बाय फॉर नाउ। इट डजंट मीन कि तुम चले जाओगे, बाय वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, बाय बाय। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इवन इफ यू लाइक for your child and yourself to consult with me, then the link is given in the description box. You can finally fill the form and I am here to